I want to express my gratitude to the Prajapita Brahmakumari Center for taking this initiative and their relentless efforts to create awareness about substance abuse and its consequences. मैं नशा मुक्ति अभियान के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र की पहल की सराहना करता हूँ। नशीले पदार्थों के सेवन और उसके परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। समाज उत्थान व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। We all know alcohol consumption in our country is so high, but worse than that is slowly but steadily the narcotic is also spreading all over the country. We all might have noticed, but steadily, step by step, the enlightenment will come. Like that. Why that is coming? Whereas it is not coming when the government is taking an enormous step. Government is having a lot of police. Government is having so many apparatus at its disposal. In no single country the government officials, government machinery has eradicated the drugs 100%. That is never possible. Because there is no personal touch. But I believe what the steps taken by the Brahmakumari Samaj, that will be successful. Why it is successful? It is person to person. The affection, the involvement, the dedication, that only create an awareness, real awareness in the minds of others. That's why I really appreciate and congratulate the efforts taken by our Prajapita Brahmakumari Center and their commitment in eradicating the drugs from our society. सरकार एक बड़ी संस्था है। सरकार की तरफ से भी नशा मुक्ति हेतु कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उठाए जाए कदमों में कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि जो व्यक्तिगत रुचि कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती है। इस मामले में जो नशा मुक्ति अभियान ब्रह्मकुमारी द्वारा चलाया जा रहा है वो उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि इसमें इस अभियान में व्यक्तिगत रुचि है, पर्सन टू पर्सन टच है, साथ ही एक समर्पण की भावना है। अगर किसी अभियान को सफल बनाना है तो उसमें समर्पित होकर कार्य करना पड़ेगा और ब्रह्मकुमारी का इतिहास रहा है कि उन्होंने जो भी कार्य किया है उसमें समर्पण के साथ किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये अभियान भी पूरे समर्पण के साथ ब्रह्मकुमारी जो है उसको अपने ध्येय तक पहुंचाएंगे। The narcotic is also spreading all over the country. We all might have noticed 5 months before about 2,000 crores of narcotic captured in harbour, and 3 weeks back a ship was captured near Kerala where more than 25,000 crores worth of narcotic is being captured. And we have to accept the reality that the youngsters are becoming drug addict. It is spreading to the universities, it is spreading to the schools also. So it has to be eradicated. When I was the president of the Bharatiya Janata Party, I took a Radayatra of 19,000 kilometers with the 5 agenda, that is 5 good motives to be spread all over the state. Then I started from Kanyakumari, Vivekananda Rock, and it was ended in Vivekananda House in Chennai. In that 5 principles, what I want to preach, one is the drug should be eradicated from the society. Our youngsters should not become a victim of the drugs.
drug is the worst. Drug will start ruling a youngster, that youngster becomes useless. बढ़ते जा रहे हैं। किसके बच्चे हैं? आपके और हमारे ही तो बच्चे हैं। तो इनको कौन देखेगा? जब वो हमारे बच्चे हैं तो समाज का ये कर्तव्य है उनकी संभाल करना, उनको इन चीज़ों से दूर करना, स्वस्थ जीवन उनकी बनाना, ये समाज का कर्तव्य है। और आज समाज क्या कर रहा है? देखते हैं, मंदिर में जाते हैं तो कभी बीड़ी सिगरेट पान जब आपको भोग लगाते हैं, भगवान को नहीं लगाते, तो आत्मा में चैतन्य कहीं मूर्ति है और वो इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, उसको हम ऐसा वो कैसे कह सकते हैं? ऐसी अशुद्ध चीजें इसमें रखते हैं, डालते चले जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने एक ये अभियान लिया है, संकल्प लिया है कि सारे भारत को जितने भी इसमें युवाएं हैं उनको व्यसन मुक्त करके ही रहेंगे। और क्यों नहीं कर सकते? जब हम ऐसी और कई अभियान हमने चलाए, पोलो क्या बोलते हैं बीमारी का, उसको भी हमने दूर कर दिया एक अभियान निकाल करके। तो फिर व्यसन मुक्त क्यों नहीं कर सकते? अपने समाज को, अपने बच्चों को हम संकल्प ले लें तो क्यों नहीं कर सकते? तो न सिर्फ इसको व्यसन मुक्त करेंगे लेकिन भारत गुरु बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसा संकल्प है सभी का। क्योंकि व्यसन करने वाला जो व्यसनी होता है वो पहले तो अपना ही दुश्मन होता है। कितने क्रूर कड़े से कड़े कोई दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अपना दुश्मन, अपने शरीर का दुश्मन व्यसनी बन जाता है। क्योंकि कोई मित्र होगा, वो मना भी करेगा तो उसको दिखाई देगा कि ये तो मेरा दुश्मन है, और जो उसको उन व्यसनों में प्रेरित करेगा उसको समझेगा ये मेरा मित्र है। तो इसलिए वो अपना दुश्मन अपने आप बन जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं पहले स्वागत की रस्म में बहनों माताओं को आगे किया जाता था, वो बड़ी मीठी मुस्कान के साथ तिलक और इलायची मिश्री इन सब इसे स्वागत करती थी। परंतु उनको हटा करके पर्दे में डाल के खुद पुरुष वर्ग सामने आ गया और आज कैसे अभिनंदन करते हैं? घर में कोई आता है तो पान तंबाकू बीड़ी शराब ये दे करके उनका अभिनंदन करते हैं और समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिएंगे। नहीं जी सकते, क्योंकि जब ये बहुत अटल नियम है तो वो हम जब ये चीजें ग्रहण कर रहे हैं तो मौत तो आनी ही है, छूट नहीं सकते। या इसी प्रकार देखें, आज दोस्त ऐसे बन गए, मनुष्यों का गुण ऐसा बन जाता है, एक व्यक्ति को व्यसनी बनाना है तो ग्रुप बन करके आता है और कैसे उसको अपने में ढाल लेता है, अपनी कसम, दोस्तों की कसम, फलाने की कसम दे करके भी फ्री में उनको ऐसी चीजें सेवन करने के लिए बाधित कर देता है। और जब वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको मदद की जरूरत होती है, तो ढूंढे उन साथियों और मित्रों को तो कहीं नहीं मिले, लापता। वो तो असल में दुश्मन थे और मित्र बन करके उसकी दुश्मनी पूरी उन्होंने निकाल ली। हमारे सोसाइटी को और जो नशा करने वाले उन्हें नहीं बर्बाद कर रहा है, पूरे परिवार को, पूरे सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। और इसके लिए एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। हमें 3 तरफ इस पे एक्शन लेना पड़ा। पहला तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पर कि हमारे यूथ हैं, जिनको टीनेजर्स हैं, जिन्हें अभी बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उससे उन नशा बेचने वालों को दूर रखना। दूसरा, जो नशा बेचने वाली बहुत सारी आप देखें सिंहभूम और झारखंड में देख रहे हैं कि बहुत जगह पे हड़िया वगैरह का प्रचलन पहले बहुत ज़्यादा था, जो आज आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि 5 से 10 साल में वो बहुत कम हो चुका है। इसलिए कि पहले ये कल्चर था कि हड़िया वगैरह उनका फूड हैबिट था। जब उसे हटाया गया तो जो बेचने वाले थे, जो बनाने वाले थे, उनको सेल्फ इम्प्लॉयड भी करना पड़ा। अगर आप लोगों को कभी मौका मिलेगा, मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कभी नशा का सामान बेचती थी, आज धागा करण का काम कर रही हैं, आज कपड़ा का बुनाई कर रही हैं, आज कपड़े के रंगाई में लगी हुई हैं और एवरेज उन्हें 200-250 रुपए का कमाई हो जाता है अगर वो 8 घंटा काम करती हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि वो नशा नहीं है। सरकार के भी ऐसे नियम आ गए हैं कि कॉलेज या विश्वविद्यालय के परिसर से इतनी दूरी तक कोई भी इस तरह की दुकान नहीं होगी। तो हमें नशा मुक्त करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है और हम लोग आज से ही यह संकल्प लें
और उस संकल्प के तहत नशा बेचने वाले, नशा करने वाले और नशा से इम्पैक्ट से हमारे जो घर की पत्नी, परिवार को जो इफेक्ट हो रहा है, इस तीनों को समझते हुए एक ऐसा अभियान चलाया जाए जो आने वाले वक्त में हमें सुधार लाना शुरू करे और धीरे धीरे हम नशा मुक्त। आज का दिन बहुत शुभ है। टुडे वी आर हियर टू से समथिंग टू नेशन दैट जस्ट Nirmala Mahan announced some few important sentences to our people. She said that a life is mortal. Just one slogan I read that you are a good soul, you are a good soul, you are a good soul. ये बहुत सुंदर बात है कि हम लोग को परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये नशा मुक्ति का आपने एक मंच पर नाटक भी देखा और उन्होंने संदेश देने का कार्य किया कि हम सोसाइटी में पीपुल जो है, पीपुल पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव दिस डिजीज। इट इज ए बिग डिजीज फॉर आवर सोसाइटी। तो वी होप दैट कि we will do this all the work for remove in society, क्योंकि हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा डिजीज है जो हमारे देश के अंदर युवाओं को, खासकर यूथ को एक नई दिशा यानी दिशाहीन करने का काम कर रहा है। हम उन युवाओं को कैसे सुधारें, ये हम सभी का ड्यूटी होता है, हम सभी पीपुल का ड्यूटी होता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें कि कैसे हम युवाओं को एक नई दिशा हम दे सकें, क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है, वो यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। युवाओं की संख्या, पॉपुलेशन डिविडेंड यहाँ यंग का बहुत ज़्यादा है और हमें ज़रूरत इसी बात की है कि कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा स्टूडेंट को हम इस प्रकार के कार्यक्रम से अवगत कराएं